اور میں خدا کے خادم پاسٹر قاسم فاروق کو دعوت دیتا ہوں تاکہ وہ خادم کا تعارف کروائیں۔ ہاللویا ہاللویا۔ کس کس کا ایمان ہے کہ خداوند روح القدس کی صورت میں ہمارے درمیان میں موجود ہیں؟ آئیے زوردار تالیوں سے خداوند کی تعریف، خداوند کی شکر گزاری ہو۔ آج فیتھ مرسی اینڈ ٹروتھ چرچ کلیسیا کے لیے ایک پھر گڈ نیوز کہ خداوند کے مقصود آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ پاسٹر عادل مسیح، یوں تو خداوند کے خادم کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ جن کو خداوند چن لیتا ہے، جن کو خداوند سرفراز کرتا ہے، وہ پوری دنیا میں ان کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ تو میں بڑے ادب سے، بڑی سنجیدگی سے، بڑے محبت بڑے انداز سے خدا کے خادم پاسٹر عادل کو ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز سامنے آئیں اور ہم فیتھ مرسی اینڈ ٹروتھ چرچ کی کلیسیا کی طرف سے ان کو ویلکم کریں گے۔ ہمارے درمیان میں ہمارے بھائی ہیں ایڈوکیٹ سرفراز صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک خوبصورت مالا خدا خادم پاسٹر عادل کی گالے میں ڈال کر پوری کلیسیا کی طرف سے ان کو خوش آمدید کریں گے۔ آئیے زوردار تالیوں سے ہاللویا۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہمیشہ رہے اور خداوند کا فضل ہم سب کے اوپر ہمیشہ رہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں مائک کو خداوند کے خادم کے ہینڈ اوور کروں گا۔ جیسے بھی خدا کا پاک روح تحریک دیتا ہے، ابھارتا ہے، جیسے بھی خداوند کا آج انمول اور عمیق کلام جو زندگیاں تبدیل کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر، بہت شکریہ آپ کی ساری تعریف کے لیے، لیکن ساری تعریف، ساری عزت، سارا آنر جو ہے وہ میرے مسیحا کے لیے ہے۔ تو بھرپور تالیاں زندہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے لیے جو موت اور قبر کا قاتل ہے۔ آپ کی تالیاں تھوڑی کمزور ہیں، جتنا اس کا زور ہمارا خدا ہے، جتنا طاقت والا اور فاتح ہمارا خدا ہے، اتنی ہی پرزور تالیاں بھی اس کے لیے ہونی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ آئیے میرے عزیزوں میرے ساتھ نکالیے گا افسیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ سبوں کے سامنے تلاوت کروں گا۔ افسیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت۔ کلام خدا میں کچھ یوں مرکوم ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دے۔ مہربانی سے تشریف اصل میں ہمارے چرچ کی روایت ہے کہ جب ہم کلام خدا کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہی چیزیں میرے ذہن میں چل رہی ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کلام کے حصہ کو جو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور آپ سبوں نے اسے بڑی بغور سنا ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس حصہ میں خدا کا خادم پالوس رسول ہم سبوں کو کیا سکھانا چاہتا ہے، اس کا اس بات کو لکھنے کا مقصد کیا ہے، اور آج مجھے اور آپ کو جب ہم اس ورس کو پڑھتے ہیں تو اس کے متعلق ہمارا ریئیکٹ کیسا ہونا چاہیے، کیسے ہم ریئیکشن دیتے ہیں کہ جب خداوند زندہ خدا کا بندہ پالوس رسول یہ لکھتا ہے کہ اس نے تمہیں بھی، تمہیں سے کیا مراد ہے؟ سب کو، یعنی مجھے بھی
यहाँ पे बैठे हुए एक एक शख्स को, चाहे वो स्टेज पे मौजूद है या सबसे पीछे वाली रो में कुर्सियों पे बैठा हुआ है, तो पौलुस रसूल कहता है कि उसने तुम्हें भी, किसने? मेरी एक आदत है कि मैं जब कलामे खुदा सुना रहा होता हूं तो मैं आपको अंगेज रखने की कोशिश करता हूं, ताकि सामीन जो हैं, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो कहीं और चले ना जाएं। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि लोग चर्च में मौजूद होते हैं, लेकिन वो बाज़ का सब्जी ले रहे होते हैं, बाज़ का अपने काम पे जो है वो मसरूफ होते हैं। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि आपने मेरे साथ यहीं पे रहना है, ताकि हम बड़े ही खुश असलूबी से कलामे खुदा में आगे बढ़ सके। तो पौलुस रसूल क्या कहता है कि उसने तुम्हें भी, यानी यीशु मसीह नासरी ने मुझे और आपको भी क्या किया है? जिंदा किया है। क्या किया है? यानी यीशु मसीह नासरी जो है वो जिंदगी बख्शता है। क्या करता है यीशु मसीह नासरी? जिंदगी बख्शता है। तो आज हमने इस बात पे गौर करनी है, ये देखना है कि उसने हमें कैसी जिंदगी बख्शी है, हमें उसने किस तौर पर जिंदा किया है। ये आप ये सोच सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि मैं तो जिंदा हूं। एक ख्याल आपके ज़हन में ये भी आ सकता है ना कि मैं जिंदा हूं, अब मुझे और ज्यादा जिंदा होने की जरूरत है क्या है? मैं तो ऑलरेडी जिंदा हूं ना। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैं तो पहले से ही जिंदा हूं, जीता हूं, मुझ में जिंदगी का सांस जो है वो मौजूद है, लेकिन फिर मुझे जिंदा करने की जरूरत क्या है? तो मेरे अजीजों, हमने इस बात पे गौर करनी है, और जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि हर एक इंसान जो गुनाह में है, जो बदी में है, जिसने खुदा को छोड़कर अपनी राह को इख्तियार कर लिया है, वो जिंदगी में नहीं बल्कि मौत की हालत में है। वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। इसीलिए तो जब हम बहुत पीछे जाते हैं, बागे अदन में पहुंचते हैं, और जब खुदावंद जिंदा खुदा ने आदम और हवा को जो है वो बागे अदन में रखा, तो खुदावंद जिंदा खुदा ने उनसे क्या कहा था? उनके लिए उस वक्त एक ही हुक्म था कि तुम बाग के सारे दरख्तों का फल जो है वो बेरोक तो खा सकते हो, लेकिन वो दरख्त जो बाग के बीच में है, उसको ना तुमने क्या करना है? छूना है, और ना ही उसमें से फल लेके क्या करना है? खाना है। और उसके बाद खुदावंद जिंदा खुदा, लश्करों का रब, इस्राएल का कदूस उससे क्या कहता है कि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू, ये कैसी मौत थी? हम देखते हैं कि उसके बाद भी आदम जो है वो 930 साल जो है वो जीता रहा, वो जिंदगी गुजारता रहा। तो इस मौत के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कैसी मौत थी? रूहानी मौत। भाई ने बिल्कुल सही बताया कि जिस रोज उसने खुदा की नाफरमानी की, खुदा के हुक्म को छोड़ दिया जो खुदा ने उसको हुक्म दिया था, जिस रोज उसने खुदा के उस हुक्म को तोड़ा, वो रूहानी तौर पर मर गया। उसकी वो रफाकत जो उसे खुदावंद जिंदा खुदा के साथ मुयस्सर थी कि खुदा हर रोज ठंडे वक्त में आता और खुदा और इंसान आपस में एक अच्छा एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करते, वे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, और वो बड़ा खूबसूरत वक्त था जब आदम और हवा खुदावंद जिंदा खुदा की हजूरी में होते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ था? ऐसी कौन सी चीज जो है वो वाकया हुई जिसकी वजह से इंसान और खुदा के दरमियान जो रफाकत थी, इंसान और खुदा के दरमियान जो ताल्लुक था वो टूट गया? उस ताल्लुक की वजह क्या थी?
गुनाह और ताल्लुक के टूटने की वजह थी। आज मैंने और आपने ये देखना है, ये गौर करना है कि क्या जब हम खुदावंद जिंदा खुदा के हुजूर में हैं, अपने आप में ये दावा करते हैं कि मैं मसीही हूँ, मैंने यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, तो क्या मैं वाकई ही जिंदा हूँ या अब तक मुर्दा हूँ? अगर हम एक बार फिर से इफिसियों में ही आए और एक बार फिर से इसे पढ़े, इस वर्ष को जो है वो पूरे तौर पर दोबारा से पढ़े, तो हमें मालूम होगा कि लिखा है, उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। यानी अब तक जो हमने बात की है, अब तक जो हमने सीखा है, उसका मतलब यह है कि हर एक वो इंसान जो गुनाह करता है, जो बदी करता है, वो खुदा की नजर में मरता है, वो अपने उस गुनाह की वजह से मर जाता है, उसकी और खुदा की रफाकत जो है वो, आपने जवाब देना है, आपने मेरे साथ रहना है। अगर आप बोलते रहिए तो इसका मतलब यह है कि अब तक मैंने जो कुछ जितनी बातें की हैं वो आपकी समझ में नहीं आई, अब फिर मुझे थोड़ा पीछे जाके वापस आना पड़ेगा ताकि आपको फिर से मैं याद करवा सकूं, आपको समझा सकूं। तो बागे अदन में रफाकत टूटी थी गुनाह की वजह से, और जिस रोज वो रफाकत टूटी उससे पहले आदम और हवा ने वो हुक्म जो खुदा ने उन्हें दिया था उससे बगावत की थी, यानी तुमने उस दरख्त में से कुछ लेकर खाना नहीं। तो इसका मतलब है हर एक इंसान जो खुदा से बगावत करता है, जो खुदा के हुक्म को तोड़ता है, वो क्या है? मुर्दा है और खुदा की रफाकत से महरूम है। क्या आज आप ये सोचते हैं कि आप जिंदा हैं? भाई ने सच बोला। अगर भाई को ये एहसास हुआ कि मैं खुदा से बगावत करता हूं तो उन्होंने ठीक कहा, लेकिन सिर्फ भाई ने तो सच बोल दिया। आज मैंने और आपने, हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबों ने अपने आप पे गौर करनी है। कोई शख्स किसी दूसरे को जो है वो जज नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी के दिल से वाकिफ नहीं है। हम खुद से हमने अपने आप का मुशाहिदा करना है, अपने आप को अंदर से देखना है कि हमारी हालत कैसी है, हम कैसा वक्त खुदा के साथ गुजार रहे हैं। तो खुदा का बंदा पौलुस यही कह रहा है कि जब तुम अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। बहुत सारे लोग इस जमीन पर, इस जहां पर जिंदा होते, वो जमीन पर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन वो मुर्दा होते हैं। वो चर्च में भी होते हैं, वो बाहर जो है वो दुआ भी कर रहे होते हैं, प्रस्तुत भी कर रहे होते हैं, रोजे भी रख रहे होते हैं, हर तरह की रूहानी रियासतें वो लोगों के सामने कर रहे होते हैं, लेकिन असल में उनकी हालत जो है वो जिंदगी से वो खाली होते हैं, वो जिंदा नहीं होते। अगर यकीन नहीं है तो आइए मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील। एक शख्स जो है वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के साथ है, यीशु मसीह नासरी के साथ वक्त गुजार रहा है, यीशु मसीह नासरी से सीख रहा है, और वो ये ऐसा है कि यीशु मसीह का शागिर्द बनना चाहता है। यीशु मसीह नासरी के साथ रहते हुए लगता है, जब हम इबादत को पढ़ते हैं, कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि उस शख्स ने यीशु मसीह नासरी के साथ कुछ वक्त गुजारा है। 8वां बाब है और उसकी 21वीं और 22वीं आयत जो है वो मैं आप सबों के सामने पढ़ूंगा। कलाम खुदा में लिखा है, एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावंद मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। ऐसा मालूम होता है कि यह
شخص کیا ہے؟ یسوع مسیح ناصری کا شاگرد ہے. اس نے کچھ وقت جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری کے ساتھ گزارا ہوا ہے. اس نے چند مہینے، ہو سکتا ہے سال، خداوند زندہ خدا کی حضوری میں گزارے ہو، اور یہ خداوند یسوع مسیح ناصری سے سیکھتا رہا ہو کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے خداوند اپنے خدا کے وفادار ہونا ہے. ہم نے گناہ کو ترک کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو خداوند زندہ خدا کے حضور میں بڑی ہی وفاداری کی حالت میں پیش کرنا ہے. لیکن آج جب یہ یسوع مسیح ناصری کے پاس ہے تو یہ ایک درخواست جو ہے وہ خداوند زندہ خدا لشکروں کے رب کے بیٹے کے حضور میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خداوند مجھے اجازت دے کہ میں کیا کروں؟ اپنے باپ کو دفن کروں. اب یہاں پہ ہمیں دو طرح کی موت جو ہے وہ نظر آئے گی. انہی دو آیات میں جب آپ اس سے بغور پڑھیں گے، دھیان سے اس پہ نظر کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان دو آیات میں ہمیں دو طرح کی موت جو ہے وہ نظر آتی ہے. ایک وہ موت جو جسمانی موت ہے، اور ایک وہ موت جو روحانی موت ہے، جس کا شکار دنیا کے زیادہ تر لوگ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے زیادہ تر لوگوں کی خدا کے ساتھ رفاقت جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. آج آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا کیا. شاگرد خداوند یسوع مسیح ناصری کے حضور میں درخواست کرتا ہے کہ خدا مجھے اجازت دے کہ میں اپنے باپ کو جا کر کیا کر لوں؟ دفن کر لوں. لیکن یسوع مسیح ناصری اس سے کہتے ہیں کہ تو میرے پیچھے چل، یعنی تو زندہ ہو جا. تو کیا ہو جا؟ زندہ ہو جا. اور مردوں کو اپنے مردے، وہ لوگ جو گناہ کی حالت میں ہیں، وہ لوگ جو بدی کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے خداوند زندہ خدا کے حضور میں نافرمانی کی ہے، خداوند زندہ خدا کے احکام کو ترک کر دیا ہے، وہ سبھی مردہ ہے، اور مردہ ہی اپنی زندگی کو اس جہاں پہ جو وقت خداوند زندہ خدا نے انہیں دیا ہوا ہے اسے پورا کر رہے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس سے کہا کہ مردوں کو، یعنی وہ لوگ جو زندگی سے خالی ہیں، جن کے پاس زندگی نہیں ہے، انہیں اپنے مردوں کو جو ان کے جیسے ہی ہیں، جنہوں نے خداوند زندہ خدا کے حضور میں نافرمانی کی، جنہوں نے خداوند زندہ خدا کے حضور میں بغاوت کی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آج جب ہم یہاں چرچ میں موجود ہیں، چرچ کے اس حال میں آئے ہیں اور ہم زندگی سے خالی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو خداوند زندہ خدا کے حضور میں لے تو آئے ہوں، لیکن اس شاگرد کی مانند آج بھی ہماری سوچیں، ہمارے خیال، ہمارے کام جو ہیں وہ خداوند زندہ خدا کے خلاف ہیں. کہیں ہم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ ہم اس زمین پہ رہتے ہوئے ہم نے اس جہان کے سارے کاموں کو جو ہے وہ پورا کرنا، ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ سب کچھ کرنا ہے جو دنیا کے باقی لوگ کر رہے ہیں. ہم نے دنیا میں سے ان ساری چیزوں کا حاصل کرنا ہے جو اس جہان کے لوگوں کے پاس ہے، جو اس جہان کے لوگ کر رہے ہیں. کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے اور پانے کی کوشش تو نہیں کر رہے. غور کریں، تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس. ہم نہیں جانتے کہ کب ہم نے اس دنیا میں سے چلے جانا ہے، کب ہم نے اس جہاں میں جو ہے وہ اپنے وقت کو پورا کر کے یہاں سے واپس لوٹنا ہے. تو کیا ہم موت میں کہیں مر نہ جائیں؟ ہمارے کاموں کو درست کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں جسم کے کاموں کو پورا کرنے کی خواہش میں لگے رہتے ہیں. اور جو لوگ
जिस्म के कामों को पूरा करते रहते हैं ना, जिनका पूरा ध्यान इस काम में होता है कि हम किसी भी तौर पर खुदा को भी खुश कर लें और जहान के भी सारे काम कर लें, उन सारी चीज़ों का हासिल कर लें जो इस जहां में मौजूद हैं, तो फिर हम जिंदगी से खाली होते। इस शागिर्द का भी हाल कुछ ऐसा ही था कि वो उसके सामने यीशु मसीह नासरी है और वो वापस उसी जिंदगी में जाना चाहता है जिसमें लोग मुर्दा हैं। गौर करें कि क्या आप जिस्म के कामों की कोशिश में तगोदो में तो नहीं लगे हो। अगर हम रोमियो का खत पढ़े ना, तो वहां पर खुदा का बंदा पौलुस एक और बात कहता है, 8वां बाब है और 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। आज फैसला आपने करना, बॉल आपके हाथ में है कि आप उस बॉल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप उसे जिंदगी की तरफ उछालते हैं या मौत की तरफ लेके बॉल को आगे बढ़ते जाते हैं। फैसला आपके हाथ में है कि आपने जिंदगी को अपनाना है या मौत की तरफ आगे बढ़ना। क्योंकि अगर आपने जिंदगी के काम किए तो लिखा है कि तो जरूर ही मरोगे। ना सिर्फ ये रूहानी मौत आप पे वाजिब हो जाएगी, आप उसका शिकार होंगे, बल्कि आप रूहानी तौर के साथ साथ जिस्मानी मौत के बाद अब्दी मौत के भी हवाला कर दिए जाओगे। क्योंकि एक वक्त ऐसा आने वाला है जिसमें हर एक इंसान का हाल जो है वो खुली किताब की मानिंद होगा। उस रोज बहुत सारे लोग इस जहां पर से खुदावंद यीशु मसीह नासरी के सामने आएंगे और कहेंगे कि ऐ खुदावंद, मैंने तेरे नाम से बड़े काम किए, बदरुआ नु कटिया, बड़ी प्रस्तिश करता रहे, बड़ा कलाम सुनाता रहे, बड़ा लोगों के घर से जा के मैं बदरुआ बादशाह की मार मार के काट, बहुत मैंने काम जो है वो तेरे नाम से किए। लेकिन अगर हम हकीकी तौर पर यीशु मसीह नासरी के फॉलोअर पैरोकार ना हुए तो फिर यीशु मसीह नासरी क्या कहेगा? ऐ बदकारो, मेरी तुमसे कभी, यानी कि तुम मुझे किसी जमाने में, किसी वक्त में भी जब तुम जमीन पर थे मुझे नहीं जानते थे और मैं भी तुमसे नावाकिफ था। इसलिए तो यीशु मसीह नासरी कहता है कि मेरी तुमसे कभी कोई वाकियत ना थी इस जहां में। जो कुछ तुम करते रहे या जैसी जिंदगी तुमने गुजारी वो तुमने अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपने आप को दुनिया के सामने पेश करने के लिए, या अगर तुम चर्च में मौजूद थे तो तुम या तो अपनी हाजिरी पूरी करते आए थे। होता है ना बात का कि बाजी साहब आए हैं तो बाज साहब ने पूछना है कि पिछले हफ्ते चर्च क्यों नहीं आया, तो चलो हाजिरी तो पूरी करिए भाई, काम से टाइम से तो चाहिए। आपकी जिंदगी से यीशु मसीह वाकिफ है। ये सोचे कि वो ऐसा खुदा है जिसके सामने इस जहां के हर एक शख्स की जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो बिल्कुल आया है। वो आपसे वाकिफ है, वो जानता है कि अदील जब लाहौर गया था तो इसने क्या किया था, इसको क्या करने के लिए मैंने भेजा था तो ये क्या करता रहा था। तो आज आपके पास ये मौका है कि आपने जिंदगी, अपनी जिंदगी में जिस्म के कामों से बचना है। और अब वो जिस्म के काम कौन से? बाज़ हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हम मसीही भी होते हैं, हम
जिस्म में रहते हुए बहुत सारी तदबीरें भी कर रहे होते हैं, हम संडे को चर्च में भी मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही हम चर्च के बाहर जाते हैं तो हम अपने मुंह पर एक दूसरा मास्क पहन लेते हैं। होता है ना, लोगों ने 4-4 मास्क रखे होते हैं। ये कौन से मास्क, किस मास्क की मैं बात कर रहा हूँ? ये वो मास्क है जब हम किसी शख्स से मिलने के लिए जाते हैं तो हम बड़े शरीफ बन जाते हैं, हम बड़े अच्छे बन जाते हैं, हम बड़े ही मुअज़्ज़ज़ बन जाते हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से उस शख्स से बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वो शख्स हमें मिलने के बाद अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेता है तो हम अपना दूसरा मास्क पहनते हैं और हम कहते हैं कि मैं इस शख्स को क्या समझता हूँ, इसकी मेरे सामने क्या हैसियत है, क्या औकात है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मेरी जॉब अच्छी है, मेरा घराना जो है वो वेल सेटल्ड है। तो हमने इस जमीन पे रहते हुए कई तरह के मास्क जो है वो पहने होते हैं। एक चर्च का भी मास्क है ना हमारे पास, कि चर्च में हमने बड़े शरीफ बन के, बड़े ही रास्तबाज बन के, खुदा के पसंदीदा बन के हमने यहाँ बैठना है। लेकिन जब हमने चर्च से बाहर निकलना है तो उसके बाद हमारे मुंह में से हर तरह की गंदी बातें, हर तरह से हम चुगलखोरी, गालियां, दूसरों के खिलाफ जो है वो तरह तरह की हम बातें कर रहे होंगे। तो हमने ये देखना है कि हमने, अगर हम ये दावा कर रहे हैं कि यीशु मसीह नासरी ने हमें जिंदा किया है, तो फिर हमने जिंदगी के कामों को, इस जहां के जो जिस्म के काम हैं उनको रद्द करना है, उनको छोड़ना है। और वो काम है, अगर गलतियों का खत मेरे साथ निकाले 5वां बाब तो उसकी 19वीं आयत से पढ़ूंगा। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी। अगर कोई शख्स हरामकार है तो इसका मतलब क्या है? वो जिंदगी से खाली है, उसमें वो जिंदगी मौजूद नहीं है जो यीशु मसीह नासरी ने हमें दी है। नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती। आज बहुत सारे लोग मसीही ये दावा तो करते हैं कि यीशु मसीह नासरी ने मुझे जिंदा किया है, मैं खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स पर ईमान लाता हूं, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते हैं? सदके जावा यीशु मसीह दे ते दूजा कौन है? ते वारी वारे भुलेशा लोग यीशु मसीह नासरी को भी कबूल करते हैं, मसीही होने का भी जो है वो बड़ा सबूत देने की कोशिश करते हैं कि मैं मसीही हूँ। लेकिन जब वो चर्च से बाहर निकलते हैं तो पीरों, फकीरों, कब्रों के ऊपर जाना भी उन्हें जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं। अगर कोई हम में से ऐसा है जो बुत परस्ती की हालत में है, जो गैर मबूदों के पीछे भागता है, तो याद रखें कि कलाम खुदा में लिखा है कि जो गैर मबूदों के पीछे जाएगा उसका दुख। अब आपने ये गौर करना है कि ये खुदा के कलाम के खिलाफ है। खुदा बुत परस्ती को पसंद नहीं करता। जादूगरी, अदावतें। अब आज का हमने अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से, इर्द गिर्द के सारे ही रिश्तेदारों से अदावत जो है वो उसकी दीवार को खड़ा कर लिया होता है। हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद और बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि आप जिंदा हैं, जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से आप जिंदा हो चुके हैं, तो फिर आपको इन सारे कामों को, इन सारी बातों को छोड़ने की जरूरत है। और जब आप इन सारी चीजों को छोड़ देंगे तो फिर आप ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह नासरी ने मुझे जिंदा किया है और मैं इस जहां के इन सारे कामों को छोड़कर अब यीशु मसीह नासरी के साथ जिंदा हूं। तभी तो पौलुस रसूल इफिसियों के खत उसके
5वां बाब और उसकी 14वीं आयत में कहता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। अगर आप यीशु मसीह नासरी के नूर को अपनी जिंदगी में चमकाना चाहते हैं तो फिर आपको उस नींद से जो मौत के बराबर है जाग कर यीशु मसीह नासरी के पीछे चलना पड़ेगा। जिस्म और जिस्म की सारी ख्वाहिशों को, जिस्म के सारे कामों को रद्द करना पड़ेगा ताकि आप पर यीशु मसीह नासरी का नूर चमक सके। और जब आप पर यीशु मसीह नासरी का नूर चमकेगा तो फिर आप जो है दूसरी मौत यानी अबदी मौत से भी रहाई पाएंगे और आपके लिए वो जगह होगी जहां पर ना रोना, ना मातम, ना ही किसी तरह की कोई परेशानी, बल्कि वो आपकी आंखों के सब आंसू भी पोंछ डालेगा। आप एक ऐसे शहर में होंगे जहां की सड़कें सोने की होंगी। आज फैसला आपके हाथ में, सोचना आपने है कि क्या आप जिंदा होना चाहते हैं। अगर यीशु मसीह नासरी ने आपको जिंदा किया है तो फिर आपको इस दुनिया के सारे कामों को तर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने काम नहीं करना, आपने काम करना है लेकिन उसे रास्तबाजी से करना है। जब कोई काम आपको दिया जाए तो आपने उसमें डंडी नहीं मारनी, बेईमानी नहीं करनी। जो काम आपको दिया जाए उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना है ताकि लोग जब आपके नेक कामों को देखें। मत्ती के अंजील 4वां बाब तो वो हमारे बाप की तमजीद करें कि मसीही वाकया ही जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, ये वाकया ही जिंदा हैं और जैसा इनका मसीह था ये वैसे ही बन गए हैं। अगर आप जिंदा होना चाहते हैं तो फिर आपको वाकया ही यीशु मसीह नासरी के साथ चलने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने जिंदा नहीं होना, मौत में ही अपनी जिंदगी को गुजारना है तो फिर आपके लिए कोई उम्मीद बाकी ना रहेगी। मसीह का नूर आप पे चमक सकता है। आज अगर आप अपनी पिछली जिंदगी के गुनाहों का इकरार करें और खुदावंद जिंदा खुदा के हजूर में आ जाए, आपके गुनाह एक पल में यूं माफ हो सकते हैं। फकत बर्रे के लहू को अपने ऊपर ले लें। जब आप बर्रे के लहू को अपने ऊपर ले लेंगे तो उसका खून हर तरह की नाराजगी को मिटाने के लिए काफी है। आज फैसला करें कि आपने जिंदगी में दाखिल होना है। जब खुदा का कलाम ये कहता है कि उसने तुम्हें भी जिंदा किया है, जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। अगर आप जिंदा होना चाहते हैं तो अपने गुनाहों और कसूरों को आज तर्क कर दें और खुदावंद जिंदा खुदा के हजूर में आ जाए। खुदा मुझे और आप सबों को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। अपने कुर्बानियाँ दी थी, अपने रब जुगा दी थी। हम खुदावंद के कलाम के लिए जो आज हमने सुना है